Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata ओके हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक ओके हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की आप लोग जो हर प्रतिदिन चर्चा करते हैं साथ में। तो मेरा भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप सभी भक्तों के संग में आया हूँ और मुझे एक मौका मिला है कि श्रीमद् भागवतम का पठन करूं, साथ में सभी भक्तों के साथ में इस श्लोक के बारे में हम चर्चा करें और हमें जो इससे प्राप्त होता है, जो ज्ञान और भक्ति में आगे बढ़ने का जो हम लोग को प्रोत्साहन जो इस श्लोक के द्वारा कुंती महारानी की जो स्तुतियां हैं इसके द्वारा अगर हम लोग को प्राप्त होता है तो ये मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप लोग का भी है। तो मैं आप सभी भक्तों को धन्यवाद देना चाहूंगा। गोपी मनोहर प्रभु जैसे कहा कि हम लोग का बहुत सालों से हम लोग इस जुड़े हैं भक्ति में और हम लोग का जन्म भी साथ में ही हुआ है और दुबई में। और मैं उनका संग करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वे भी बहुत जैसे शीतल स्वभाव के हैं और वो जब क्लास करते हैं तो बहुत सुंदर शीतल स्वभाव, बहुत ही ठंडे जैसे ऐसा मालूम होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो उनके सारे परिवार बहुत सुंदर भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और मार्गदर्शन आपका और बहुत सारे भक्तों का वो करते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यस, तो श्लोक के ऊपर चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। स्कंद 1 26वां चैप्टर 8वां चैप्टर है। शीर्षक है कुंती महारानी की स्तुतियां और 26 वाला श्लोक है। सुंदर श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर एदमान मदः पुमान नैवार हति अविधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। और एक बार करते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिः एदमान मदः पुमान नैवार्हति अभिदातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरन। चरम या प्रभु ट्रांसलेशन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। My Lord, your Lordship can easily be approached, but only by those who are material exhausted, one who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education, and bodily beauty cannot approach you with sincere feelings. Purport. Being materially advanced means taking birth in an aristocratic family and possessing great wealth, an education, and an attractive personal beauty. All materialist men are mad after possessing all these material opulences, and this is known as the advancement of material civilization. But the result is that by possessing all these material assets, one becomes, it can go up, artificially puffed up, intoxicated by such temporary possessions. Consequently,
Such materially puffed up persons are incapable of uttering the holy name of the Lord by addressing him feelingly. O Govinda, O Krishna. It is said in the Shastras that by once uttering the holy name of the Lord, the sinner gets rid of a quality of sins that he is unable to commit. Such is the power of uttering the holy name of the Lord. There is not the least exaggeration in this statement. Actually, the Lord's holy name has such powerful potency, but there is a quality to such utterances also. It depends on the quality of feeling. A helpless man can feelingly utter the holy name of the Lord, whereas a man who utters the same holy name in great material satisfaction cannot be so sincere. A materially puffed up person may utter the holy name of the Lord occasionally, but he is incapable of uttering the name in quality. Therefore, the four principles of material advancement, namely high parentage, good wealth, high education, and attractive beauty, are, so to speak, disqualifications for progress on the path of spiritual advancement. The material covering of the spirit soul is an external feature as much as fever is an external feature of the unhealthy body. The general process is to decrease the degree of the fever and not to aggravate it by maltreatment. Sometimes it is seen that spiritually advanced persons become materially impoverished. This is no discouragement. On the other hand, such impoverishment is a good sign as much as the falling of temperature is a good sign. The principle of life should be to decrease the degree of material intoxication, which probably can go up a little, which leads one to be more and more illusioned about the aim of life. Grossly illusioned persons are quite unfit for entrance into the kingdom of God. Prabhu, you can go back to the verse and just keep the word-to-word meaning. Yeah. Yes, that's right. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagar Jatam Sahagana Raghunathamitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakamitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitya Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripat Mahamande Shri Guru Dinatarina Paramananda Madhav Shri Chaitanya Ishwaram Ananda Leela Maya Vigrahaya Himanga Divya Chavisundaraya Tasmai Mahaprem Rasapradaya Shri Chaitanya Chandraya Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namaste Shri Chaitanya Chandra Namo Namaste Hare Krishna. बहुत ही सुंदर श्लोक कुंती महारानी के द्वारा है. इससे हम इस श्लोक के माध्यम से कुंती महारानी स्तुति तो कर रही है कृष्ण भगवान के प्रति कि हे कृष्ण आप तो द्वारका जा रहे हो मगर आप जाओगे तो हम अकिंचन हो जाएंगे और जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी
जो ये चार जो गुण जैसे भौतिक जगत में है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, और जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो इन चारों चीजों के प्रति बहुत आकर्षित हैं। वो चाहते हैं कि ये सब प्राप्त हो। तो कुंती महारानी इस प्रकार प्रार्थना कर रही है कि हे कृष्ण, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप यहाँ से तो द्वारका जा रहे हो, मगर आप जो अकिंचन है वो बहुत आपसे आसानी से आपके समक्ष आ सकते हैं, मगर आप तो यहाँ से आप जा रहे हो। तो इस तरह से प्रार्थना कर रही है। तो इससे यहाँ पर कुंती महारानी क्या शिक्षण दे रही है? कुंती महारानी ये शिक्षण दे रही है कि भगवान जो है इस श्लोक में खास करके अभिधातुम वै, ये बहुत ही मुख्य शब्द है। ये मुख्य शब्द क्या है कि हम लोग किस तरह से भगवान के प्रति प्रार्थनाएं तो करें, मगर प्रार्थना के साथ में भाव भी उत्पन्न करें, क्योंकि भगवान जो है भावग्राही है। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दन। तो भाव ये बहुत मुख्य है। ये चार जो जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी सब चाहते हैं जन्म अच्छा हो, सब चाहते हैं कि सौंदर्य ब्यूटी हमारे पास हो, सब चाहते हैं कि अच्छा शिक्षण हो और धन बहुत हो। तो इस तरह सभी चाहते हैं कि ये सब कुछ हो उनके पास। मगर ये चारों चीज जो हैं, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये चारों चीज जो हैं ये एक प्रकार से भगवान की भक्ति में ये बाधाएं जो है करती तब है जब इनके प्रति हम लोग हमारे जो भाव हैं इसको बढ़ाएं। वैसे ये चार चीज जो है बाधा नहीं है कृष्ण भक्ति में, मगर ये चारों चीजों के प्रति हम जो अपने भाव को बढ़ाते हैं, वी इम्प्रूव आवर फीलिंग्स टुवर्ड्स ऑल ऑफ दीज। हम लोग अपने भाव को इनके सारे चीजों के प्रति हम लोग बढ़ाते हैं, ये एक बाधा बनती है भक्ति में। भक्ति में भाव बहुत मुख्य है। और हम लोग इतिहास में भी देखते हैं कि, और वास्तविक यहाँ पर अभी जो समय है इसमें भी जब देखते हैं तो इन चारों गुणों में भी हम लोग देखते हैं कि कैसे ये चारों चीज हम लोग उसको प्रयोग किए हैं कृष्ण की भक्ति में। तो ये एक प्रकार से बाधा नहीं है, मगर इनके प्रति अगर भाव हम लोग उत्पन्न करते हैं तो ये बाधा बनती है। तो हमें चाहिए कि हमारा भगवान कृष्ण की भक्ति में इन चारों चीजों को किसी न किसी तरह से प्रयोग करे, और ये ना कभी भूले कि भगवान इस्कॉन हम लोग क्यों ज्वाइन किए हैं, उद्देश्य क्या है। इस्कॉन में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हम लोग क्यों आए हैं? भावना को, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, इस भाव को बढ़ाने के लिए आए हैं। हम लोग इस्कॉन में आए हैं और कोई भाव को बढ़ाने के लिए नहीं है, केवल एक ही भाव को बढ़ाने के लिए, वो है कृष्ण की भक्ति को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि कृष्ण भक्ति ही इस भौतिक जगत का जो बीमारी है, इस बीमारी से हम लोग हट जाते हैं, हट सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे तात्पर्य में कहा कि ये चारों चीज जो है एक प्रकार से भौतिक जगत में हम लोग आए हैं तो एक बीमारी है, और ये बीमारी जो है इसको अगर हम लोग और भी बढ़ाएं तो हम हमेशा एक बीमारी के स्तर पर हम लोग रहेंगे। मगर इस बीमारी को अगर हम लोग का एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो इस बीमारी को घटाता है, बढ़ाता नहीं है। तो घटाना चाहिए। तो कैसे घटाओगे? कैसे घटाओगे? जब हम लोग कृष्ण की भक्ति हम लोग ठीक तरह से कर सकें। ये भाव को उत्पन्न करना है। भगवान कृष्ण बहुत सारे मौका देते हैं किस तरह से इस भाव को बढ़ाएं।
भगवान कृष्ण को कहा गया, जैसे भावग्राही जनार्दन कृष्ण का एक दूसरा नाम है, उसी तरह से भगवान का दूसरा नाम है भक्तवत्सल। भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, एक वत्स की तरह। वत्स को कहा गया है, गाय की जो बछड़े को कहा गया है वत्स। जब बच्चे का जन्म होता है, गाय के बछड़े का जन्म होता है, तो गाय माता अपने जीवा से उस वत्स को साफ करती है। तो जब भगवान को कहा गया है कि भक्त वत्स, इसका अर्थ यह है कि भगवान जो है हमारे जितने कलमश है उसको साफ कर रहे हैं। जैसे गैया माता जो है अपने बछड़े को बहुत अपने जीवा से प्रेम पूर्वक साफ करती है, तो उसी तरह से भगवान कृष्ण हमारे, जो हम लोग उनके वत्स हैं मगर भूले हुए वत्स हैं, भूल गए हम लोग, मगर कृष्ण किसी न किसी तरह से इस जीवा से उसको साफ कर रहे हैं, अपने भगवत गीता की वाणी से साफ करते हैं, भगवान का शुद्ध नाम से साफ करते हैं, महाप्रसाद से साफ करते हैं, भक्तों का संग से साफ करते हैं। श्रीमद् भागवतम जो हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उसके द्वारा साफ हो रहा है। तो हमें हमेशा इस बात की चेतना होनी चाहिए कि साफ तो हो रहे हैं, कृष्ण भक्ति में हम लोग आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो भौतिक बीमारी को नहीं बढ़ाएं, भौतिक बीमारी को नहीं बढ़ाएं, इसको घटाएं, इसको कम करें। जैसे यहाँ पर कुंती महारानी प्रार्थना करी अकिंचन। अकिंचन का अर्थ है कि कोई भी भौतिक जो है संपत्ति, भौतिक इच्छाएं से कंप्लीटली बाहर है, उनके पास भौतिक बिल्कुल भी कोई चीज नहीं है। एग्जॉस्टेड, मटेरियली एग्जॉस्टेड पर्सन, यानी उनके पास बिल्कुल भी सब खत्म। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे, जैसे बॉम्बे के शब्द में कहते हैं भिखारी, नहीं, भिखारी का अर्थ वो नहीं है कि हम लोग भिखारी हो जाते हैं, यानी सारे सब कुछ हम लोग रास्ते में आ जाते हैं, वो नहीं है। अकिंचन का विपरीत शब्द है धनवान, जो धनी है, जिसके पास धन है। तो अकिंचन का अर्थ जब हम लोग कहते हैं कि वे यहाँ पर जैसे अकिंचन बने, मेटीरियल एग्जॉस्टेड, तो साथ साथ पॉजिटिव क्या है कि वो भगवान कृष्ण के प्रति उनका भक्ति का धन वो बढ़े। धनी हम लोग बने, कृष्ण की भक्ति में धनी बने। ये सबसे मुख्य है कि कैसे हम लोग कृष्ण की भक्ति करते हुए हम लोग धनी बने। एक बार राधा गोविंद महाराज ने कहा, जब क्लास होने के बाद में उन्होंने कहा कि मेरा धन कहाँ है, तो भक्तों ने कहा कि जैसे कोई भी जैसे भागवत कथा करते हैं, अभी पता नहीं कि अभी हो रहा है कि नहीं, अभी तो ऑनलाइन में सब हो रहा है तो मुश्किल ही है, मगर एक थाली होता है जिसमें लोग आके दान देते हैं, तो लक्ष्मी का दान देते हैं। तो महाराज जी के शिष्यों ने कहा कि महाराज जी धन तो सामने है, ट्रे के ऊपर है धन। तो महाराज जी ने कहा ये धन नहीं, मेरा असली धन कहाँ है? तो बोले असली धन क्या है? तो एक भक्त समझ गए, तो बोले महाराज जी जपमाला। तो महाराज जी फिर उनको महाराज जी को जपमाला दे दी, और महाराज जी फिर जपमाला लिए, बोले ये है असली धन, भगवान का नाम का धन। तो ये प्राप्ति हम लोग को करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये धन बहुत आवश्यक है कि हमें ऐसे धन जब प्राप्त होता है तब वास्तविक में भक्ति जब करते हैं तो आनंद में रहते हैं। और भौतिकवादी व्यक्ति इन चारों चीज के पीछे भागते हैं। वैसे जन्म तो आ जाता है, वो नहीं जानते हैं तो कैसे हो गया, मगर अभी मैं धन इकट्ठा करूं, मैं शिक्षित हो जाऊं, मैं बहुत अपने आप को मैं बहुत सुंदर बनाऊं, तो इसके प्रति बहुत भागते हैं। तो उनको लगता है कि ये धन है, मगर वास्तविक में इन सारे धनों को बहुत सुंदर तरीके से हम लोग कृष्ण की भक्ति में हम लोग उसको उपयोग करें। तो धन
तो अकिंचन हम लोग बने, इसका अर्थ ये है कि भौतिक चीजों से, भौतिक आकर्षणों से, भौतिक ये सो जन्म, जो ऐश्वर्य, श्रुत भी, इनसे जो अगर प्राप्त होता है अपने कर्म द्वारा, अगर कृष्ण की कृपा हो, ये सब हम लोग प्राप्त करते हैं, तो इसको कैसे कृष्ण के सेवा में बहुत सुंदर तरीके से उपयोग करें। ये बहुत बहुत, ये जो कला है, जो कैसे हम इन सारे गुणों को हम लोग कृष्ण की ओर सेवा हम लोग करें, तो ये कला जो है हम लोग को शिक्षण प्राप्त होता है अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ के कॉलेज में। कॉलेज का अर्थ है मंदिर। तो मंदिर जो है वो कॉलेज से अलग नहीं है। कॉलेज हम लोग जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो वहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इसी तरह से इस्कॉन में हम लोग आते हैं तो शिक्षा हम लोग को प्राप्त होता है। और शिक्षा प्राप्त होती है तो उससे हमारे पास, हर भक्त के पास कुछ ना कुछ गुण होता है। या तो वो अच्छा बोल सकता है, या तो अच्छा वो गा सकता है, या अच्छा कुकिंग कर सकता है, या अच्छा भक्तों विग्रहों की सेवा कर सकता है, या कुछ नहीं हुआ तो केवल एक भक्त ने कहा कि कुछ भी नहीं आपके पास, अगर समझो आपने कहा कि मेरे पास कोई भी गुण नहीं है, तो बोले एक गुण आपके पास होना चाहिए, वो क्या है? बैठने का गुण। बैठने का गुण का अर्थ है कि आप बैठे और श्रवण करें, सुने भगवान कृष्ण के बारे में, भक्तों के द्वारा कृष्ण के बारे में आप सुने। तो एक कम से कम बैठने के पास, बैठने का कला तो सबके पास है। आप एटलीस्ट कम से कम बैठिए। जितना आप श्रवण करोगे, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो हो उदय, शुद्ध चित्त की प्राप्ति होती है। शुद्ध चित्त क्या है? शुद्ध चेतना क्या है? कि कृष्ण के बारे में हम लोग विचार करें, और साथ साथ अगर ये सब कुछ हमारे पास आता भी है तो हम लोग कृष्ण की सेवा में उसको उपयोग करें। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी ही, बहुत अच्छे खानदान में जन्म हुए, जैसे कुंती महारानी का जन्म हुआ है, बहुत यदुवंशी में उनका जन्म हुआ है, और भोग डायनेस्टी में उनका पतिदेव, उनका जो है विवाह हुआ वसुदेव, नो सॉरी, पांडु के साथ। तो इस तरह से उनका हाई पेरेंटेज है। हम लोग देखते हैं इतिहास में बहुत सारे हाई पेरेंटेज हैं। अम्बरीश महाराज भी बहुत सारे हाई पेरेंटेज के हैं, मगर किस तरह से वे भक्ति, कृष्ण की भक्ति में अपनी जो है, जो गुणों जो हम प्राप्त किए वो कृष्ण की सेवा में उपयोग किए हैं। वो महाराज अम्बरीश था, और इस भौतिक जगत में एक दूसरा है एक अम्बरीश, वो है अम्बरीश दास। अम्बरीश दास कौन है? फोर्ड के ग्रैंडसन है, सुपुत्र है। और वो क्या कर रहे हैं? वो सारे धन को, सारे जो हाई पेरेंटेज है उसको कृष्ण की सेवा में उसको युक्त कर रहे हैं। तो इसके उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं अम्बरीश महाराज, जो बहुत सुंदर सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बताते हैं कि कैसे अपने मन को कृष्ण की में एकाग्र करना है, अपने सारे जो इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, सारे कृष्ण की, और उसको किस तरह से उसका उपयोग करें वो समझाते हैं। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पर अम्बरीश दास जो प्रभुपाद जी के शिष्य, बहुत सुंदर तरीके से अपना धन, अपना जो फेम, अपना जो पोजीशन, वो सारे कृष्ण की सेवा में उसको युक्त कर रहे हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि एजुकेशन, हाई एजुकेशन, आजकल हमारे जो जो आईआईटी इस्कॉन में जितने हम देखते हैं कि आईआईटीएंस, जो आईआईटी पवाई या खड़गपुर या कहाँ से भी उन लोग शिक्षण ग्रहण किए हैं, किस तरह से उस शिक्षाओं को भक्ति में उसको उसको उसका सही उपयोग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य डॉक्टर स्वरूप दामोदर महाराज, वे भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और किस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तकें लिखे कि लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम मैटर, इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें, और ऐसे साइंटिस्टों को वे जो हैं उनको भक्ति के मार्ग में उनको आने का उनको प्रोत्साहन किए।
ऐसे ही हम लोग एक बहुत सुंदर एक इतिहास में इस अभी जस्ट प्रभुपाद जी के ही शिष्य हम लोग देखते हैं एक ब्यूटी श्रेय ब्यूटी को किस तरह से हम लोग कृष्ण की सेवा में हम लोग युक्त कर सकते हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है प्रभुपाद जी का एक शिष्य सतरूपा माता जी का। सतरूपा माता जी जो है डच डच डेनमार्क में उनका जन्म हुआ, बहुत ही बड़े फैमिली में उनका जन्म हुआ और उनका नाम था एनी स्कॉफस और वो 1965 में मिस डेनमार्क भी बने, तो बहुत ब्यूटीफुल। और उसके बाद में उनको मॉडल असाइनमेंट्स बहुत सारा कुछ मिला। एक बार एयरपोर्ट में किसी एक भक्त का संग हुआ, भक्त ने भगवत गीता दिया उनको और और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे से नहीं हो सकता, मगर किसी ना किसी तरह से उन्होंने कहा कि मैं हम लोग जो है योग अभ्यास सिखाते हैं कि किस तरह से भक्ति में आए और किस तरह से हम लोग जो है किस तरह से हम लोग भक्ति में आते हुए कैसे हम लोग कृष्ण हमारे जो सही और हमारे असली पिता हैं उनकी हम लोग सेवा करें। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है 2 महीने बाद हम पेरिस में मंदिर में आएंगे। तो फिर 2 महीने बाद वो पेरिस के मंदिर में आई और वहां पर भक्तों का एक भागवतम क्लास सुनी। तो योग उसको योग करना था तो उनको जाके पूछा योग क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि योग करना है तो ये माला जप करें। तो माला हाथ में थमा दिया। तो सिगरेट पीती थी तो सिगरेट पी रही है और फिर बाद में उसको याद आया कि उसको जप भी करना है। तो हमेशा वो जप करती थी। जब सिगरेट का एक नशा आता था कि उसको करना है, एक इच्छा आता था करना है, तो वो तुरंत ही वो जप करना शुरू करती थी। बोले ये राउंड के बाद मैं सिगरेट एक सिगरेट में फूकूंगी। शी विल स्मोक दैट सिगरेट। सो फिर वो जैसे ही वो राउंड खत्म हुआ उन्होंने कहा कि मैं और एक राउंड करता हूँ। तो इस तरह से और एक राउंड करने के बाद 2 राउंड करने के बाद वो इच्छा ही समाप्त हुआ। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को बहुत ही भक्तों के संग में आकर अपने भक्ति लता बीज को बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा और फिर जाके प्रभुपाद जी से वो दीक्षा उन्होंने लिया सतरूपा माता जी, और सारा कुछ छोड़कर वहां पर फ्रांस के एक मंदिर में वहां पर उन्होंने सेवा किया। तो इस तरह से उनके मित्रों को भी वो प्रेरित किए। ये हुआ ब्यूटी, एजुकेशन, हाई पेरेंटेज और धन। धन का जो हम लोग देखते हैं अम्बरीश महाराज और माता जी भी बहुत सारे मिलियंस में कमाई थी, वो सारा जो है कृष्ण की सेवा में उन्होंने युक्त किया था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी ये बाधा नहीं है भगवान की भक्ति में। मगर अगर हम लोग इससे आसक्त हो जाते हैं और इन चारों चीजों को बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य करें तो ये बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा हमारे लिए भगवान की भक्ति में ये जो है एक बाधा बन जाती है। तो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। इसीलिए भक्तों के संग में हम लोग को आना है। इस बीमारी को हम लोग को बढ़ाना नहीं है, इस बीमारी को गठाना है। और कितना सुंदर है कि हम लोग जब भक्तों से मिलते हैं तो उनका चरित्र इतना सुंदर, उनका स्वभाव इतना सुंदर, उनका बोलने का जो माध्यम है इतना सुंदर। वो यही चाहते हैं कि कृष्ण देते पारो, कैसे हम कृष्ण को दे, कृष्ण को किसी न किसी और को हम लोग देते रहें। कृष्ण से तो मार, कृष्ण देते पारो। कृष्ण आपका है हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण आपका है। किसी न किसी तरह से आप कृष्ण को दे सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं वो इस प्रार्थनाओं से बता रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है। हम लोग को वैष्णव ठाकुर की हम लोग को कृपा चाहिए, और जब कृपा हम लोग को प्राप्त होगा, जितने हम लोग भक्तों के संग करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो बहुत ही जल्दी हम लोग कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्तों का चरण धूलि को लेना है। तो चरण धूलि का अर्थ क्या है? एक स्क्रेपर और एक बाउल भक्तों के समक्ष नहीं लेके जाना है कि भैया अपना पैर दे दो, मैं स्क्रैप करता हूँ, जितना धूली है मैं ले लूं। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उनके पद चिरों पर कैसे चले। वी
वी एम्यूलेट, वी डोंट इमिटेट। हम लोग इमिटेट नहीं करें, हम लोग उसको उससे शिक्षाओं से हम लोग सीखे। जैसे यहाँ पर शिक्षाओं से हम लोग सीखे, कुंती महारानी कहती है कि हमें अकिंचन बना है। दूसरा श्लोक भी इसके बाद वाला सो, नमो अकिंचन वित्ताय। भगवान कृष्ण जो मेटीरियली एग्जॉस्टेड है, वो उसके प्रति बहुत बहुत ही वो बहुत उनको बहुत चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भिखारी है, नहीं। इसका अर्थ ये है कि वे इतने सारे सब कुछ होने के बाद में भी अगर वो उससे वैराग्य रखता है और भक्ति के द्वारा कृष्ण की सेवा करता है, तो ये अनुकूल है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। जैसे भक्ति का दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। तो केवल ज्ञान और वैराग्य हो और भक्ति नहीं हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो आप बूढ़े हो जाओगे। मगर श्रीमद् भागवतम से हम लोग शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे भक्तों के मुखारविंद से जो सुंदर प्रार्थना है, उससे हम लोग का शिक्षण प्राप्त होता है। क्या शिक्षण प्राप्त होता है? शिक्षण प्राप्त होता है कैसे हम लोग को भौतिक चीजों से वैराग्य हो, ज्ञान बढ़ाए, कैसे हम कृष्ण की भक्ति बहुत सुंदर तरीके से करें। अगर भक्ति नहीं है, केवल ज्ञान ज्ञान हो, पंडित बनोगे, हाँ पंडित बनोगे तो केवल पंडित रहोगे। मगर पंडित का सही अर्थ है कि हम लोग समभाव से सभी को देखें, भक्तों से भी प्रेम करें, और जो बाहर के जो समाज है, जो अभक्त हैं, जो दुर्भाग्य से भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, उनको प्रेरणा करें, उनको समाभाव रखें, उनको किसी ना किसी तरह से अपना कला को बढ़ाकर किसी न किसी तरह से उनको कृष्ण की भक्ति में ले आए। और उनका जो भी गुण है, उस गुण को आप बढ़ाएं और उनको बोले इस गुण से कैसे कृष्ण की सेवा करें। So many ways, there are so many ways to attract people, to make them Krishna conscious. Someone can sing so nicely. Tell them, you sing so wonderful. आप कितने अच्छे गाते हो, कृष्ण के लिए गाए। जैसे जय पताका महाराज, उनको जब वो ज्वाइन किए तो भक्तों ने कहा, भक्त जो है वो रथ का पहिया जो है, रथ यात्रा यूएस में पहली बार कर रहे थे, तो रथ का पहिया को वो ठीक कर रहे थे, तो जय पताका महाराज जी आए थे उनके पास, उनको बुलाए, तो बोले मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो बोले ये जो खिला है इसको आप पकड़ सकते हो, मेरे को जरा ठोकना है। तो वो खिला पकड़े और उसने जो प्रभु है उसने ठोक दिया, शायद आई थिंक इट वाज श्याम सुंदर प्रभु, तो और इट वाज आई फॉरगेट द डिवोटीज नेम। तो उसने फिर ठोका, तो उसने कहा कि ओह कितना सुंदर तरीके से आप उसको पकड़ रहे हैं, अभी पकड़ने में क्या सुंदरता है, मगर फिर भी उसको गुणगान किए, कितना सुंदर तरीके से आप पकड़ रहे हो, और भी कुछ आप सेवा कर पाओगे? तो उसने कहा यस यस, और इस तरह से वो भक्ति में आया। देखिए, और कितने जन को यहाँ पर प्रेरित किए हैं, हमें स्वयं प्रेरित किए हैं कि किस तरह से अच्छे जप करें और हमेशा उत्साहपूर्वक भगवान की भक्ति में आए। तो इस समय हुआ है, तो इससे हम लोग इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या शिक्षा प्राप्त हुआ है? इस श्लोक के माध्यम से ये शिक्षा प्राप्त हुई है कि जितने भी हमारे पास ऐश्वर्य आ जाए, ये गुण आ जाए, ये बाधा नहीं है। इसको उठा इस गुणों को हम लोग को बढ़ाना नहीं है, मगर इस भाव को बढ़ाना नहीं है, मगर इन सारी चीजों कृष्ण की भक्ति में उसको ले आना है। जैसे हम लोग को बीमारी है, बीमारी को बढ़ाना नहीं है, ये सब बीमारी है, इसको बढ़ाना नहीं है, इसको कृष्ण की भक्ति में ले आना है। और दूसरी बात है कि जितने गुण हैं, सारे कृष्ण की भक्ति में हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। और जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य बताए हैं कि भगवान का जो शुद्ध नाम है, वो जो नाम है उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमें भगवान के प्रति और हम लोग को करीब ले आ सकता है। तो क्वालिटी ऑफ चैंटिंग, तो क्वालिटी ऑफ चैंटिंग के ऊपर आना चाहिए। क्वालिटी ऑफ चैंटिंग जो है भाव के द्वारा उत्पन्न होती है। भाव जो है वो शुद्ध भाव की हम लोग प्राप्ति करें। इससे हम लोग कैसे होगा? ये भक्तों का जब संग करेंगे तब होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। सॉरी आई हैव गॉन 3 minutes ahead. थैंक यू जन प्रभु, बहुत अच्छा आपने इसको विश्लेषण किया आप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे इसमें। तो जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ, इफ यू हैव टाइम तो कुछ प्रश्न उत्तर ले सकते हैं हम लोग।
7:30 को योगा अभ्यास है, ओके व्यायाम ओके व्यायाम अभ्यास. Anyway, but we'll take maybe 1 or 2. Let's try and see. Maybe another 2 minutes. It's okay. ओके. क्विकली किसी का कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो क्विकली प्रभु को जाना है, उनका कोई दूसरा एंगेजमेंट है तो प्लीज. दूसरा एंगेजमेंट है योग व्यायाम, चर्बी को कम करना है. Yes, quickly. सर्वदेव प्रभु. Oh, one person raised their hand. अरे सर्वदेव प्रभु, हरे कृष्णा. आपको 607 भी मिस, आपको भी 607 मिस कर रहा है, हम लोग भी मिस कर रहे हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. थैंक यू सो मच प्रभु जी. बहुत बढ़िया सेशन था प्रभु जी, बहुत कुछ सीखने मिला प्रभु जी. एंड हाउ यू कनेक्टेड दिस ऑल थिंग कि किस तरह हमें भक्ति में इसको कनेक्ट करना है. ये जो बीमारी है प्रभु जी, दैट प्रभु जी अगर हम ये सोचे कि हम ऐश्वर्य कमाएं और हम इसको भगवान की भक्ति में लगाए, तो इज इट राइट टू थिंक, और जैसे कि आपने बोला है कि ये बीमारी को हमें कम करना है, बट अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐश्वर्य कमाएं एंड देन वी विल यूज दिस मनी टू भगवान की सेवा में, तो इज इट राइट टू थिंक प्रभु लाइक दिस और एनी अदर एंगल टू? हम लोग जब ऐसे इस तरह से सोचते हैं कि हम लोग पैसे बहुत कमाएंगे फिर बाद में कृष्ण की सेवा में रखेंगे, तो जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये सब चीजों से अगर हम लोग उसको बढ़ाने की हम लोग प्रयास करते हैं तो क्या होता है, तो फिर हम लोग जो है आर्टिफिशियली पफ्ड अप, हम लोग जो है अभिमानी हो जाते हैं भौतिक चीजों से, बहुत हम लोग आर्टिफिशियली पफ्ड अप हो जाते हैं. तो क्योंकि इसको कमाने के लिए जब हम लोग विश्लेषण इसका करते हैं, कमाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास, इससे क्या होता है, हम लोग बहुत मेहनत करोगे, उसमें समय ज्यादा हम लोग निकालोगे और हमेशा विचार करते रहेंगे कि कैसे इसको बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं. तो एक भक्त जो है संतुष्ट ये न किए न हुआ, यानी हर स्थिति में वो संतुष्ट है. तो अगर कर्म के द्वारा उसको इतना ही धन कमाना है तो वो उससे संतुष्ट है, इज हैप्पी, और वो कृष्ण की भक्ति में उसको उपयोग करते हैं. मगर अभी है नहीं मेरे थाली में इतना, अभी मैं सोचूं अरे यार मुझे और कमाना है, मैं और मेहनत करूंगा, मैं और करूंगा, तो चांसेस ये है अगर कर्म आपका अच्छा रहे तो आपके पास लक्ष्मी आए तो फिर आप कृष्ण की भक्ति में उसको लगा सकते हैं. मगर अगर नहीं आए तो संतुष्ट ये न किए नवा, अपने ही भगवान भक्त बहुत संतुष्ट होते हैं, जैसा उनको प्राप्त हुआ है वो कृष्ण की भक्ति में उसको उपयोग करें. तो इसलिए विचलित ना हो, ओ मैंने बहुत प्रयास किया, ओहो हो फिर कृष्ण ने क्यों नहीं दिया, मैं चाहता था कि बहुत मेरे पास लक्ष्मी हो, नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, ओ मैं कृष्ण को दोषी ठहराऊं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए. तो ये आ सकता है आर्टिफिशियली पफ्ड अप, अहंकार इति हम में, वो क्या श्लोक है, that we think that अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मान्यते, हमको लगता है अरे मैं कर रहा हूं, क्यों नहीं आया, तो ये नहीं आना चाहिए. तो संतुष्ट ये न के नवा, जो हम लोग को प्राप्ति हो रहा है कम समय में हम लोग उसको करें. और एक बहुत सुंदर एक उदाहरण, किसी को बहुत सालों से एक ही पद पे था वो, तो उसको चाहता था कि वो बहुत अच्छा कमा भी रहा था, तो वो चाहता था कि दूसरा उसको पद मिले, अच्छा मैनेजर, जनरल मैनेजर बने, तो वो सोचा कि ऐसा कंपनी को छोड़ के वो दूसरा कंपनी में ज्वाइन करे. तो महाराज जी से बात की, महाराज जी मुझे जो है दूसरा कंपनी में मुझे जाना है, वहां पर मुझे पद मिलेगा और मैं जाऊं वहां पर. तो महाराज जी ने कहा आप वहां पर जाओगे तो क्या आपको कृष्ण भक्ति के लिए ज्यादा समय मिलेगा कि कम मिलेगा? तो उसने कहा कि यहाँ पर जो है समय बहुत कम है, बहुत काम करने का जो समय है बहुत कम है, मुझे कृष्ण भक्ति बहुत मिलता है यहाँ पर, मगर दूसरे कंपनी में जाऊं तो वो समय ज्यादा होगा. तो ऐसा वो विचार करने लगा. तो महाराज जी ने कहा तो फिर जिधर हो उधर ही बेटर है, क्योंकि आप जिधर आप कमा भी रहे हो अच्छा, पद नहीं मिला ना तो नो प्रॉब्लम, मगर आप जो है कृष्ण की भक्ति कर सकते हो. तो इस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया. तो ये जो है ध्यान में रखना है, संतुष्ट ये नहीं कहना. हाँ अभी ये यहाँ पर नौकरी मिला है तो इसमें जो है मुझे कृष्ण भक्ति बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, तो वेरी गुड. अगर मैं ज्यादा मेहनत करूं
ओ तो मेरा कृष्ण भक्ति घट रहा है, वो देखना है, वो विश्लेषण करना है। अगर घट नहीं रहा है तो करो, नो प्रॉब्लम, करो। अगर घट रहा है तो फिर आपको सावधान रहना है, क्योंकि भौतिक शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। वो हमें जो है आर्टिफिशियली पफ्ड अप बना सकती है। और प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखते हैं तो वो उनका आत्म साक्षात्कार है, वैसे ही नहीं लिखते हैं। तो भौतिक शक्ति बहुत स्ट्रांग है, इससे हम लोग जो है कृष्ण से हम लोग विचलित भी हो सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक रहा? या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। Namaskar. Very good explanation, sir. माता जी, दिस इज योर वाइफ? No, this is one Nandini Mataji. Nandini Mataji. She has recently joined. I think few days back, and since then she has been very sincerely continuing all the morning japa sessions, Bhagavatam session, evening session. Fantastic. So she's one very nice. You can say she's already a devotee, and that's why she has so much inspiration. She's a railway officer. And oh, wonderful railway officer. So please keep Southern your train Railway in Krishna. accounts officer. Southern Railway. You're from Yes. Southern India? Are you from Chennai. Southern India? I'm in Chennai. Chennai. Yes. No one. No. So is that? Don't give up that that railway, the train from Krishna's track. Let it never derail. Let it always be there in Krishna's service. Okay, Prabhu, I am so sorry, but I would love to spend more time. Jayagond Prabhu का call आया, 10 मिनट हो गया, माता जी रुकती होगी, because I am supposed to be the student to reduce my charbi more. So. Pranam. Pranam. Okay. Hare Krishna. I'll take leave. Hare Bol. Yes, Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare, I'm seeing such wonderful names. Surat Madhav Prabhu is there. Satyaraj bhi hai, hero. Just 1 minute. Can everybody just put on their cameras, please? Yeah. Please put on the cameras. Prabhu can see Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Surat Madhav Prabhu, Hare Bol. And thank you. Jeevan. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जीवन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रदीप प्रभु, हरि बोल। अरे सत्यराज किधर? गोविंद चरण प्रभु, हरे कृष्ण। सत्यराज प्रभु, वेयर आर यू? द हसमुख चेहरा, संतोष सत्यराज प्रभु, हरि बोल। Nice to see you. And nice to see you. Thank you, Gopinath Prabhu, for giving me this little opportunity. Hare Krishna. Wonderful to see you all. Hare Krishna, Kunjeshwari Mataji. Hare Krishna. We are missing your birthday cake. Okay. Hi. Let me go. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Okay. Thank you. Prabhupada ki jai. Jai. Premanande. Thank you. Hare Krishna. Okay. तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. Thank you everybody. It was a very nice session. मेरे को बहुत अच्छा लगा जो प्रभु ने points बोले थे. So I will just repeat a few points which प्रभु had quoted. तो एक तो है कि भगवान जो यहाँ पे भावग्राही जनार्दन है. So that what प्रभु has pointed कि अभिधातु, यानी जब भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं या प्रसाद मतलब कोई भी सेवा कर रहे हैं, हम लोग भोगा बना रहे हैं या चैंटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो इट शुड बी अभिधातु विद भाव. क्योंकि अगर भाव नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं है. उसका खाली मैकेनिकली नहीं करना है हम लोग कोई भी चीज. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान इज अ पर्सन. और हम लोग रिलेशनशिप में भी देखते हैं कोई ऐसे खाली मैकेनिकली है, दंडवत प्रणाम प्रभु, कैसे हैं प्रभु, तो वी डोंट लाइक दैट. तो देयर शुड बी फीलिंग. एंड कृष्णा इज ऑल्सो ए पर्सन, सो ही लव्स दैट. जब भाव हम लोग प्रकट करते हैं, जिसलिए हम लोग देखते हैं कि कभी जो भगवान दुर्योधन के पास इतना बड़ा जो 56 भोग था वो खाने नहीं गए वो, लेकिन
जो विदुरानी जी ने जो केले का छिलका खिलाया, बट इट वाज आउट ऑफ सो मच लव, कितना प्रेम था। तो भगवान इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, उनको प्रेम, उनको भाव पसंद है। तो दैट वाज अ वेरी नाइस पॉइंट। और बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि ये जो चार चीजें जो है ये मतलब अ, भौतिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा एक है ना अपॉर्चुनिटी है, या बहुत एक ऑपुलेंस है। अरे बाप रे, इसके पास इतना बड़ा ये, अरे ये ब्राह्मण कुल से है, इतना बड़ा जन्म है, या इसके पास इतना धन है, या कोई सुंदर है तो अरे बाप रे कितना सुंदर है। तो भौतिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन स्पिरिचुअली देखें तो ये है, कुंती महारानी कह रही कि ये एक तरह से बाधा है हमारे लिए। लेकिन प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से बोला कि ये बाधा जो है हम लोगों को भगवान की सेवा में यूज करना है। अगर ये हमारे पास ऑलरेडी है, अगर अच्छा जन्म है, अच्छा ऐश्वर्य है, अच्छा सौंदर्य है, तो ये सब जो है भगवान की सेवा में हम लोग को यूज करना है। और बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे भक्त वत्सल की कैसे गाय जो है अपने बछड़े को जीवा से साफ करती है, तो वैसे हम लोग भी जो है हम लोग यहाँ पे अपनी सफाई के लिए आए हैं। भगवान अपनी वाणी से, अपनी जीवा से कैसे साफ करें, हम लोग को भगवत गीता सुनाते हैं, भागवतम सुनाते हैं, अपना पास टाइम्स जो है इतना सारा करते हैं, ताकि उनका जो सारा जो भी लीला है वो हम लोग सुन सुन के हम लोग अपने आप को शुद्ध करें। और अकिंचन का भी एक जो उन्होंने बोला कि अकिंचन मतलब ऐसा नहीं कि वो भिखारी होता है, बट अकिंचन मीन्स उससे, उसके पास अगर है भी तो उससे कोई आसक्ति नहीं है उसको, अकिंचन। तो ऐसे लोगों से भगवान बहुत ज्यादा जो है मतलब प्रेम करते हैं। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोला प्रभु ने कि टेम्पल जो है हम लोग को, प्रभुपाद क्यों बोलते हैं बार 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 कि हम लोग को भक्तों का संग करना चाहिए, हम लोगों को भागवतम के क्लास में बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट इज लाइक ए कॉलेज। मंदिर जो है इट इज लाइक ए कॉलेज, हम लोग वहाँ पे सीखने जाते हैं। हम लोग नॉर्मली हम लोग भी देखते हैं जब कॉलेज में कोई बच्चा जब जाता है, तो जब वो ज्यादा बंक मारना शुरू करता है तो फिर पढ़ाई में पीछे रह जाता है। वैसे भी हम लोग भक्ति में भी देखते हैं, जब कोई भक्त जब भक्तों का संग नहीं करता, या वो अपने मतलब सिंधी हॉल में नहीं आ रहा है या मंदिर में नहीं आ रहा है, तो हम लोग को चिंता होना शुरू हो जाता है कि अरे क्या हो गया, मतलब इमीडिएटली वी स्टार्ट फॉलोइंग हिम, अरे प्रभु क्या हो गया करके। एंड देन वी ट्राई टू ब्रिंग हिम क्लोज एंड क्लोज, क्योंकि उसका जो पढ़ाई है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का, ये नहीं छूटना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम लोग जो कंटिन्यूस हम लोग जो है अपना भक्तों का संग करेंगे, सीखते रहेंगे हम लोग, तो ही भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम लोग जो है पीछे रह जाएंगे। और भौतिक, जैसे प्रभु ने बोला, माया जो है वेरी वेरी पावरफुल, पकड़ के ऐसा खींच लेगी ना, माया तारे झापटिया धरे, तो झपट के पकड़ लेती है। मतलब ऐसा, मतलब जैसे कुश्ती का दाव पेच होता है ना, तो कैसा फट से ऐसा पकड़ लेता है, ऐसा गिरा देता है नीचे, तो माया भी वैसे झपट के पकड़ लेती है और ऐसा गिराती है कि तो फिर जो है मतलब एकदम इज वेरी मच, एकदम पतन हो जाता है उसका। तो दिस आर फ्यू पॉइंट्स आई थॉट आई विल रीशेयर। प्रभु के बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। हरे कृष्णा। इफ एनीबॉडी वांट्स टू शेयर समथिंग, और या कोई पॉइंट है, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो हम लोग ले सकते हैं। प्रभु वाज इन ए हरी। यस यस, सरुदेव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो भी एक पॉइंट अच्छा लगा प्रभु जी की दैट ये जो चार जो चीजें हैं, जैसे कि प्रभु जी ने ऑपुलेंस को कनेक्ट किया, कि जैसे अम्बरीश प्रभु जी का वो कनेक्ट किया कि वो किस तरह अपने धन को ये करते हैं। देन जो एजुकेशन है वहां पे उन्होंने प्रभु जी ने कनेक्ट किया आईआईटी के जो स्टूडेंट है, हाउ दे मतलब एजुकेट, मतलब किस तरह वो एजुकेट देते हैं, एंड दैट ब्यूटी, उसके लिए उन्होंने वो माता जी का जो कनेक्ट किया। इट वाज वेरी नाइस पॉइंट प्रभु, हाउ ही कनेक्टेड। सो हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सरुदेव प्रभु। यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने प्रभु जी को इनवाइट किया और हमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने समझाए,
और सबसे मेन पॉइंट था प्रभु जी, जो ऐसे ही अभी सुरेंद्र गिरधारी प्रभु बताया, वो माता जी का और अमरीश प्रभु का, ये दोनों हाईलाइटेड पॉइंट है। मुझे सबसे 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 एकदम अच्छा पॉइंट जो उन्होंने लास्ट लाइन बताया कि शिला प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य में जो लिखा है, ही इज अ सेल्फ रियलाइज, मतलब उन्होंने रियलाइज करके लिखा है। हम लोग देखते हैं कि बाकी जो लोग हैं उनसे, जो मैंने बहुत सारे ऐसे किताबें देखी है जो भगवत गीता में, वो लोग उनका खुद का दे आर नॉट रियलाइज, लेकिन वो इधर उधर से पढ़ के लिखते हैं। बट नो, शिला उन्होंने क्या बताया कि शिला प्रभुपाद इज अ सेल्फ रियलाइज। उन्हें तो वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रभु जी, ये जब भी मैं पढ़ रहा था तो प्रभु जी ने जैसे बताया कि ये जन्म है ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी, तो शिला प्रभुपाद जी वो बोल रहे हैं कि दिस इज द मदर, मदर मीन्स इंटॉक्सिकेशन। तो शिला प्रभुपाद उनके लेक्चर में एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक आदमी है, वो ड्रंकर्ड है, मतलब वो दारू पीता है, तो उसको थोड़े समय में लगता है कि ही इज इन हेवन। वो हेवन मतलब स्वर्ग में है, स्वर्ग, तो स्वर्ग में है वो। लेकिन उसका दारू का नशा उतर जाता है तो उसको पता चलता है कि वो रास्ते पे किधर पड़ा है। तो सेम लाइक दैट कि जब भी ये जन्म है, अच्छा एरोस्टेटिक फैमिली में है, उसके पास धन है, सब कुछ है, लेकिन ये सब निकल जाएगा उसका। और फिर कैसे निकल जाएगा, वो बोले थे डेथ जो आती है उसको 1 सेकंड में उसको निकाल देती है। तो शिला प्रभुपाद बोलते कि दिस, ये जो है ये इंटॉक्सिकेशन है। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि वी शुड यूटिलाइज एवरीथिंग इन कृष्णा स्टडी, अमरीश महाराज का एग्जाम्पल। और उन्होंने शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि इसमें और एक एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद जी ने, मैंने पॉइंट लिखा था उसका, हाँ, वैष्णव। तो बोलते हैं कि जो वैष्णव होते हैं वो हमेशा जो दे आर इक्वल टू एवरीवन, सबको इक्वल समझते हैं। और सबसे मेन चीज उन्हें बताया कि दे वांट सब लोग एलिवेट हो जाए कृष्णा कॉन्शियसनेस तक। तो वो बोल रहे थे कि दैट इज द मेन क्वालिटी ऑफ वैष्णव। तो शिला प्रभुपाद जी यूएस में जब ये लेक्चर दे रहे थे, तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि आप जो इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट जीरो। आपके पास भले ही आप अमेरिका में हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आपके पास इतना धन है, लेकिन वो मरने के बाद जीरो हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी जीरो। तो शिला प्रभुपाद उनके लेक्चर में वो बोलते थे कि ऐसे जीरो कितने भी लगाते जाओ, बट इफ यू डू नॉट एड वन, दैट जीरो डजंट हैव वैल्यू, सो दैट वन इज कृष्णा। तो वो ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा। क्विकली सानिका माता जी, सुजाता माता जी, प्रेम सखा प्रभु, अगर कोई पॉइंट है और कुछ डाउट है तो वी कैन टेक दैट। प्रभु थोड़ा जल्दी में थे, उनको योगा के लिए जाना था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्या हम लोग ऐसा, ये श्लोका को ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग जब भी हमारे इनिशिएशन होता है तो वी आर इनटू रिच फैमिली, भगवान की फैमिली से बिलोंग करने लगते हैं, ऐश्वर्य मिलता है हम लोग को, गुरु महाराज हमें ऐश्वर्य देते हैं, धन, जो कि कभी कम नहीं होने वाला है। और विद्या, भगवत गीता भागवतम पढ़ने के लिए बोलते हैं। और जो सौंदर्य, भगवान का जो आदर्श विग्रह है उनका सेवा करने के लिए बोलते हैं। और जो एक्चुअल भौतिक ऐश्वर्य है, जो मद है, वो निकल जाता है। तो ये मुझे पॉइंट ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली ये देखें तो एक्चुअली यहाँ पे कुंती महारानी क्या बोल रही है, जो 4 चीजें हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, तो ये इट्स एन ऑब्स्टिकल, हमारे भक्ति में ऑब्स्टिकल है ये। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो है ऑब्स्टिकल को हम लोग को पार करना है, बिकॉज दिस इज मटेरियल, लेकिन जो स्पिरिचुअल जो है तो उसकी तरफ हम लोग को आगे बढ़ना है। लाइक व्हाट यू सेड, वी कैन कनेक्ट इन दैट वे। हरे कृष्णा।
He also emphasized it should be continuous, not having breaks in between. Yeah, yeah. Also, it should be continuous. मतलब जो है हेतु की अप्रतिहता means there should be no break. It should be continuous. Even Bhagavatam says. It should be like a Taila Dara, which is always falling in a straight line. What is the word you use, Mataji? What Dara? I said Taila Dara. Taila to oil. Okay. Dara. It should be always continuous and straight. Yes. Yeah. It should not have anything in between. So we have 4 steps like Salokya, Samipya, Sayujya. So forgive. Sarupya and Sarishti. Yard. Huh? Sarupya and Sarishti. Huh. First you will feel, you will go to his loka, then you will be near him, then his rupa will also become like God, and then we get Sayujya to reach the lotus feet of the Lord. Actually, Sayujya is the last. Merging into the Lord. Yes, that is the last. Yeah, what Vaishnava says here, what Prabhupada normally puts on, that a Sayujya Mukti, a Vaishnava is never inclined towards Sayujya. He's always a dasa. Yeah, he's not inclined for merging into Lord. He wants to become the servant of the Lord. He wants to become the das. So he's not bothered with Sayujya. Like Hanuman, he never said okay to Ram when he asked him to come along with him. Yeah. Will I get a chance to serve you there? If it is so, I will come with you. Otherwise, I'm far better here. Yeah. So that is the mode. That is very important. We have to serve. And what happens in Sayujya, technically, he is not doing anything. He's just, see, Atma and Paramatma, he can never mix. Atma will always remain Atma, Paramatma will always remain Paramatma. He's never going. So it remains in that Brahma Jyoti and is not doing anything, which is not good for a Vaishnava. He always wants to serve. So he is looking for Samipya. Near the God to serve. Yeah. So where he can him. Yeah, where he can serve. Yes. But Chaitanya Mahaprabhu says, "Ki mama janmani janmanishware bhavatad bhaktir ahituki tvai." He says, I even don't want liberation. I just want to be here, and whatever you situation you keep me, I am happy over there. But I want your bhakti. I don't want even liberation. I want bhakti. So that is more important for us. Yes. Thank you, Nandini Mataji. Very nice point. Hare Krishna. Yes, Sujata Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ प्रभु जी, आपकी वजह से बहुत अच्छे आप बुला रहे तो बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है मेरे को। आज के लेक्चर में से एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, वो जो प्रभु जी ने बताया कि वो जो मीन्स लेक्चर दे रहे थे भागवतम का, तो उसके बाद उन्होंने जो धन मांगा तो दूसरे प्रभु जी ने उनके पास एक्चुअली धन लाके रख दिया, तो वो बोले कि वो मेरा धन नहीं है, मेरे को असली धन चाहिए मेरा, तो उन्होंने फिर जप माला लाके दिया। ये पॉइंट मेरे को सबसे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वंडरफुल। ये बहुत एक्चुअली ये राधा गोविंद महाराज है, ये बहुत अच्छा मतलब भागवतम पे प्रवचन करते हैं, और प्रभुपाद ने उनको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया, तुम कुछ मत करो, सिर्फ भागवतम करो। तो महाराज जो है तब से लेके मतलब प्रभुपाद जी का ये इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, और वो सिर्फ भागवतम कथा करते हैं। और उनका इवन स्कॉट डिजाइटरी पे इतना सारा महाराज का लेक्चर्स है, मैं खुद उनका मतलब उनसे शिक्षा लेता हूँ, बहुत सा उनका लेक्चर पहले सुनता था, अभी इतना टाइम नहीं मिलता, बट फिर भी सुनने का प्रयास करता राधा गोविंद महाराज से। और ही इज वेरी मतलब बहुत अच्छे मतलब बोले ना एक बहुत अच्छे प्योर डिवोटी है वो। और उन्हीं का ये उदाहरण था कि जब खत्म हो गया, नॉर्मली जब भागवतम कथा होता है तो सब बोलते ना, सब
सब जो प्रवचन करता है मेरा धन किधर है लेके आओ, मेरा चेक लेके आओ, मेरा 1 करोड़ का 4 करोड़ का जो भी भागवतम है। तो वैसे महाराज ने ऐसे जोकिंगली बोला होगा कि भाई मेरा धन किधर है। तो किसी ने बोला होगा महाराज ये प्लेट है। तो महाराज बोले नहीं नहीं, ये वाला धन नहीं, मेरा असली धन का है। तब उनका जो एक शिष्य था वो समझ गया महाराज क्या मांग रहे हैं, और उन्होंने अपना जपा बैग जो है उनको लाके दिया। तो या मतलब जो है हम लोग को सही धन क्या है हम लोग को समझना है, क्योंकि बाकी धन जो है वो तो आएगा और चला जाएगा, इज गोइंग टू फिनिश। या तो वो हमको छोड़ देगा या तो हम उसको मृत्यु के साथ छोड़ देंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान का नाम का जो धन है हम लोग बोलते हैं ना, उस हमेशा उसको काउंट करते रहना चाहिए। कितना धन हम लोग जमा किया है वो हम लोग को भगवान के नाम का धन जो है वी हैव टू कीप कलेक्टिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही धन हमारे काम में आएगा। बाकी ये धन हम लोग के पास कितने 1000 करोड़ भी हो गए तो भी मृत्यु के साथ छूट जाएगा वो, इट इज ऑफ नो यूज। तो थैंक यू सुजाता, हरे कृष्णा।